नेक्स्ट टाइम मैं बोलता हूँ ना, नेक्स्ट टाइम कम से कम 30,000 वोट की मेजॉरिटी से जीतता हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम भी देख लो आप ऐसे। మా ఎమ్మెల్యే గారికి ఉంది, అందరినీ పక్కన కూర్చొని పెట్టే గుణం ఉంది. ఏనాడన్నా వైఎస్ఆర్ పార్టీలో సాయి ప్రసాద్ రెడ్డి ఏనాడన్నా పక్కన కూర్చొని పెట్టుకుని చర్చ ఉందే? ఎస్సీలని ఎస్సీలు అన్నాడు, మాదిగోని మాలోడు అన్నాడు, మాదిగోని మాదిగోడు అన్నాడు, మాలోడు అన్నాడు, బాలోడు అన్నాడు, సాయిబు అన్నాడు. ఈ రకంగా పులి పేరు अगले 25 साल में एमएलए रहने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैं किसी को दूर नहीं। चलो नहीं नहीं लो नहीं नहीं इनका में नमाज पढ़ा लेटर पढ़ దయచేసి అందరూ కూడా వాళ్ళని ఆహ్వానం పలకొచ్చి హాజీపురం నుండి వచ్చినటువంటి కౌన్సిలర్ శ్రీమతి వెల్లాల లలితమ్మ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే కన్వీనర్ శ్రీరాములు సార్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. అలాగే కో కన్వీనర్ శ్రీ నాగరాజ్ గౌడ్ గారు, ఎమ్మెల్యే దగ్గర ఉంటే మన అభివృద్ధి అయితే జరుగుతుంది. ఇల్లు అయితేనేమి, రోడ్లు అయితేనేమి, డ్రైనేజీలు అయితేనేమి చెప్పిన విధంగా కరెక్ట్ చేస్తాడని చెప్పి నమ్మకం కలుగుతో, ఆ నమ్మకంతో ఈరోజు అందరూ కూటమిలో బీజేపీ పార్టీలో జరగడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన ఎమ్మెల్యే గారు ఇదివరకు ఎంతో మంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు. దాదాపు 30 సంవత్సరాల నుండి ఈ ఏరియాను చూస్తాను. అదే పాత ఇళ్ళు ఉండేవి, అదే పాత గృహాలు ఇక్కడ అనుబంధం ఉండేవి. చాలా మంది అప్పుడు నన్ను మానలేపనం చేసేప్పుడు ఇక్కడ ఎద్దుల బండ కట్టుకొని నాకు ఆ సరకు దోలడానికి వచ్చేవాళ్ళు. ఇక్కడే పండుకొని ఇక్కడే పూజిని ఈడే ఉండేవాళ్ళు. నన్ను వీళ్ళందరూ చాలా అనుబంధం ఉంది నాకు. కానీ చాలా మంచి మనసులు. అదేవిధంగా ఆ రోజు చూసిన ఈ రోజు కూడా ఉన్నాయి. ఎన్నోసార్లు ప్రభుత్వాలు మారినాయి కానీ ఈయనలో మాత్రం మారలేదు. ఖచ్చితంగా మన సార్ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మన ఎమ్మెల్యే సార్ ఖచ్చితంగా ఈ ఇండ్లని రూపకల్పన మార్తాడని చెప్పి ఈ ఉద్దేశంగా ఈ సభ ముఖ్యంగా ఖచ్చితంగా తెలుపుతానని చెప్పి మనం చేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మీరందరూ పార్టీలో చేరినందుకు చాలా సంతోషం ఉందని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా తెలుపుతున్నాను. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు మన ఎమ్మెల్యే కుల మతాలకు అతీతంగా బీజేపీ పార్టీ అంటే మతవాది పార్టీ అనుకుంటారు. కానే కాదు. బల్ల బుద్ధి చెప్తాము. కానే కాదు. మతవాది పార్టీ కానే కాదు. ఎవరు కావాలని ఏరా పార్టీలో చూపిస్తారో తప్ప ఆ ఆలోచన విధానం ఈ పార్టీలో లేదని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా తెలుపుతున్నాను. మా ఎమ్మెల్యే గారికి కులము మతము ఏమీ సమస్య లేదు. కానీ అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు కావాలని బురదగా ఉదయం చెప్తున్నారు. కానీ అది నిజం కాదు. ఖచ్చితంగా నిజం కాదని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా తెలుపుకుంటున్నాం. మనందరూ కలుపుకొనే పోయే గుణము మా ఎమ్మెల్యే గారికి ఉంది. అందరినీ పక్కన కూర్చొని పెట్టే గుణం ఉంది. ఏనాడన్నా వైఎస్ఆర్ పార్టీలో సాయి ప్రసాద్ రెడ్డి ఏనాడన్నా పక్కన కూర్చొని పెట్టుకుని చర్చ ఉందే? ఎస్సీలని ఎస్సీలు అన్నాడు, మాదిగోని మాలోడు అన్నాడు, మాదిగోని మాదిగోడు అన్నాడు, మాలోడు అన్నాడు, బాలోడు అన్నాడు, సాయిబు అన్నాడు. ఈ రకంగా పులి పేరు దూషించిన వ్యక్తి ఒక సాయి ప్రసాద్ అని చెప్పి ఈ రకంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఎన్నోసార్లు మేము అనుభవించాము. మాదిగోడన్నాడు, బోయాడన్నాడు, మాలోడన్నాడు, పురుకోడు కూడా అన్నాడు. అన్ని చిత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ అలాంటి వ్యక్తి కాదని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా अरे यार मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ,
अगर मुसलमान समाज पूरे मुसलमान लोग तो मेरे ख्याल से 50-60,000 लोग हैं आदनी के, अगर आप वोट नहीं दिया होता मैं कैसे एमएलए बनता हूं बोलो? मतलब क्या है? इससे पहले इलेक्शन में जब भी मैं एमएलए लड़ रहा था, पूरे मुस्लिम समाज मेरे साथ था, पूरे मुस्लिम समाज मेरे पीछे रखे, आप जीतो, हमको कुछ करो, ये गांव को थोड़ा जब आगे बढ़ाओ बोल के बोले थे, इसीलिए मैं एमएलए बनाऊं। अगर उसी दिन मुसलमान मुझे नहीं वोट देते, मुसलमान समाज मुझे नहीं चाहते, तो मैं एमएलए बनने की सवाल ही नहीं उठता ना। तो ये बोलना चाहता हूं कि जब मैं आदोनी में एमएलए कैंडिडेट जैसे आए, जब भी मुस्लिम समाज मेरे साथ था, अभी भी मुस्लिम समाज मेरे साथ है, आइंदा भी मेरे साथ ही होंगे, मैं उनके साथ हूं। और दूसरा चीज है, भारतीय जनता पार्टी खास करके डॉक्टर पार्थसारथी एमएलए मुस्लिम के खिलाफ कभी बात नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता, उनके साथ प्रेम करता है। मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। मैं एक ही बार एमएलए बना नहीं चाहता हूं, बार बार मैं अगले 25 साल मैं एमएलए रहने वाला हूं यहाँ पे। तो मैं किसी को दूर नहीं रखता हूं, किसी को ऐसे बोलता नहीं। राजनीति अलग है, राजनीति में आरोप रहता, प्रत्यारोप रहता है, हम एक बोलते दूसरे लोग हम खिलाफ और कुछ बोलेंगे, ये तो राजनीति का चीज है, ये मामूल की चीज है। लेकिन आप जिसके वास्ते मुझे जिताया, मैं एमएलए बनाया मुझे, उसके लिए मैं आज भी नियमबद्ध हूं। आप बोल रहे थे किसी को पेंशन नहीं आ रहा है टाइम पे, किसी को जगह नहीं है, किसी को घर नहीं है, किसी का ड्रेनेज सही नहीं है, किसी का रास्ता नहीं है, किसी का रोड सही नहीं बना है। 30% मुस्लिम लोग आदोनी में रहे पूरे जनाबा में। इन लोग तो ये जो 10-12 वार्ड्स में जो ज्यादा रहते, वहां पे तो हालत और खराब है। मैं सीधा पूछना चाहता हूं, इससे पहले एमएलए जो बनाए इतने साल रहे, कोई 10 साल रहे, कोई 15 साल रहे एमएलए जैसा, कभी इन लोगों को लेके कुछ करे क्या आप? जब इन लोगों के कुछ भी नहीं करे, ऐसे क्यों बोलते आप ये पूरा मुस्लिम मेरे साथ है, मेरे साथ है? अरे किसके साथ? कोई काम करते उसके साथ रहते हैं, कोई काम नहीं करेंगे कि उसके साथ क्यों रहते बोलो? मैं उन लोगों को एक सलाह भी देता हूँ, वाईएसआरसीपी पार्टी लोगों को या माजी एमएलए को और किसी को जो बोलते बार बार, उनको एक ही सलाह देता हूँ, कभी भी डॉक्टर पार्थसारथी का या बीजेपी की या मुस्लिम की बीच में कुछ आग लगाने की कोशिश न करो आप। ये होने वाला नहीं है, जब तक मैं एमएलए हूँ वो होने वाला नहीं है। मुझे तो ना कुल है ना भेद है, कुल की भेद नहीं रहता, मत की भेद भी नहीं रहता, किसी का उम्र की भेद भी नहीं रहता। मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ, सबके साथ रहता। मैं घर छोड़ के बाजार में आए तो सब लोग मुझे हाथ उठाते, ऐसे जैसे एक भाई को हाथ उठाए, एक घर के आदमी को जैसे हाथ उठाए, सब लोग मुझे हाय बोलते, मेरे पास आते, जो भी कुछ बोलना है, कुछ परेशान है, सीधा मेरे घर पे आते, कुछ भी बोल के काम करा के जाते हैं। मैं सीधा इसे वैसा से लोगों को पूछता हूँ, आप कभी ऐसे करे क्या? कभी आप इन लोगों के पास आए या इन लोगों को आपके घर पे बुलाए? दोनों भी नहीं करे आप। और इसके आगे उनको जितनी का जमीन छीन लिए, इतना परेशान करे मुस्लिम समाज के लिए आप, तो आपको नफरत करते हैं। जो परेशान में डाले आपको मुस्लिम समाज नफरत करते, जो मेरे जैसा प्यार देते आप लोगों के लिए, मैं आपके साथ देते हैं, मुझे कभी भी इनके घर पे रख लेते हैं। मैं कैसा आप देखिए, मैं कभी भी ऐसे देखता हूँ ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन, ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी सिंसियर कार्य करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में या आरएसएस में कभी वैसे नहीं रहता। भारतीय है बस, इंडियन है बस,
इंडियन में कौन है किसी कोई भी नहीं देखते हम। आदोनी में पूरा मिला के, आदोनी के लिए पूरा मिला के हिंदू मुझे वोट दिए, क्रिश्चियंस मुझे वोट दिए, मुसलमान मुझे वोट दिए, सिख वोट दिए, या और गुजराती वाले मुझे वोट दिए, राजस्थानी वाले वोट दिए, सब लोग वोट दिया तो मैं इतना भारी मेजॉरिटी से जीता हूं। 18,500 वोट की मेजॉरिटी है मेरा, कभी आदोनी में देखा भी नहीं से पहले। नेक्स्ट टाइम मैं बोलता हूँ ना, नेक्स्ट टाइम कम से कम 30,000 वोट की मेजॉरिटी से जीतता हूं मैं। नेक्स्ट टाइम भी देख लो आप ऐसे। अरे यार, जब भी कुछ करने के लिए कोई आए उनके ऊपर तो ऐसे ही बोलना नहीं किसी के। आप विमर्श करो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। राजनीति में विमर्श साधारण होता है। आप बोले तो मैं भी बोल सकता हूँ, मेरा नाम है, आपके लीडर्स कुछ बोले तो मेरा लीडर्स भी कुछ बोलेंगे। खास करके मैं हर एक वार्ड में, हर एक गली गली में लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में आओ बोल के मैं उनके लिए स्वागत कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा लोकल लीडर्स है ये भाई। ऐसा लोकल लीडर्स की जरूरत है मुझे। अगर ये भाई यहाँ पे नहीं है मेरे पास, ये गली की समस्या कैसे मालूम होता है मुझे, बोलो। मैं कहीं घर पे रहता हूँ, कहीं फिरते रहता हूँ, मेरे पास आप जो दिए अधिकार है, मैं आप बनाए ना मुझे एमएलए, अधिकार है मेरे पास ऑफिसर्स है, मैं पैसे ला सकता हूँ आधुनिक के लिए, खर्चा कर रहा हूँ मैं। सुबह से शाम तक इधर उधर फिर के जो डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लोग गली गली में के अंदर जो लोग अगर मेरे पास नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, मेरे साथ दोस्ती नहीं करे, अगर ये मेरे साथ है, मेरा दोस्त मानता हूं इन लोगों को, इन्होंने जो भी बताया काम करने की कोशिश करता हूं कम से कम, है ना जी। अगर कोई भी नहीं आए मेरे पास, ये वाईएसआरसीपी लोगों का और किसी लोगों का बात सुन के, अरे यार ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, वो एमएलए अलग है, ये एमएलए, वो बीजेपी है, बीजेपी का साथ कोई नहीं, ऐसे बोलते गए तो मैं कहां से आपको सेवा करूं। मैं सही आपके लिए सेवा करने के लिए आया हूं आधुनिक, और कुछ काम नहीं मुझे ना व्यापार है आधुनिक के अंदर, ना नौकरी है, ना और कुछ करना है। और इससे पहले एमएलए जैसा मैं कब्जा नहीं करता, किसी का नहीं छीन लेता। मैं सिर्फ आपके सेवा में लगने के लिए आया हूं मैं। एक साल में देखिए, एक साल में कितने काम कर रहे, हर एक गांव, घर घर पे जा रहा हूं मैं, हर एक गली गली में जाके क्या परेशानियां देखने की कोशिश कर रहा हूं, हर एक आदमी से मिलना चाहता हूं। हर एक ईद पे, या मुसलमान का ईद है, हिंदू का पंडग है, या क्रिश्चियन का कुछ फेस्टिवल है, तो उनके पास जाके सबसे बात मिलना चाहता हूं, सबके साथ मिलके प्रार्थना कर रहा हूं। भगवान तो एक ही होता है, मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान तो एक ही है ना भाई। सबसे मिलजुल के आधुनिक को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हम बोलते सबके साथ सबका विकास। विकास बोले तो डेवलपमेंट है, सबको डेवलपमेंट करे तो गांव डेवलप होता है। खाली एक जगह डेवलपमेंट हुआ, खाली एक बस्ती में डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट नहीं बोलते उसको। सो सबको मिला के, सबके साथ डेवलपमेंट करने का अम्मा आपको वादा दे रहा हूं मैं आज। किसी को पेंशन नहीं है, नहीं, यहाँ तो यहाँ भाई है, दूसरे गली पे दूसरे रहते हैं, दूसरे गली पे दूसरे रहते हैं, सब लोग आइए। किसी को पेंशन नहीं दिलाने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। किसी को जगह नहीं है, बोलिए आप, मैं जगह दिलाने का भी गवर्नमेंट तैयार है करने के लिए, गवर्नमेंट जगह दिलाने की कोशिश करता हूं। जगह है आपके पास, घर बनाना है मुझे बोलिए, मैं घर का पैसे दिलाता हूं। और कुछ परेशान है मुझे बोलिए आके, मैं जो भी कर सकता हूं करने को तैयार हूं। मुझे और कुछ काम नहीं है, आपको सेवा बगैर और कुछ काम नहीं है आधुनिक में मेरे लिए।
ये बताने के लिए मैं आपकी गली पे आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद की बहुत बहुत नमस्कार, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं ऐसे आराम से आदोनी में राजनीति चला रहा हूँ। जब तक आपका आशीर्वाद है वो भी सुरक्षा है मेरे लिए। जब तक आपकी आशीर्वाद है मैं एमएलए बनते ही रहूंगा आदोनी के अंदर। ये बोल के आपको सभी को नमस्कार बोलते मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।